project of the Ministry infrastructure. Academy organized 4 national level conferences. Yeah, now let me know if I am audible, visible. Prakash, bataiye. Yes, ma'am. Very good Good morning. morning, ma'am. Great. Good morning, everybody. तो हम Morning, शुरू ma'am. You करें? are visible and audible, ma'am. Great. Thank you so So much, शुरू करें? ma'am. Good Yes, morning, ma'am. everybody. Just give me 5 minutes, ma'am. ठीक है, let me know. I am here. Let me know. Yes. Good morning, ma'am. Morning. Yeah. Good morning. I will request all the participants to please keep your mic mute and you can start your video so that we can see your faces. And first of all, I would like to thank Sutapa Sanyal ma'am, DGP Uttar Pradesh, who retired from the post of DGP Uttar Pradesh, to spare her valuable time for this webinar. Thank you so much, ma'am. And I welcome you, ma'am, in this online webinar. And I would also like to thank Shri Anuj Kumar Singh sir, Deputy Director CFPT Bhopal, all the senior officers of CFPT and learned participants from across the country. I welcome you all, not only on my own behalf and on behalf of Director CFPT. I welcome you all in this webinar. Today, the topic of this webinar is gender sensitization, and this is a very this is the need of the hour, a very important issue, because we can see a lot number of women officers in every department, whether it is judiciary or police or prosecution, any field. We have a large number of female officers. So it is very much necessary that we should sensitize the officers or the personnel. And before going on further course of action, I would like to request Honorable Deputy Director CAPT Shri Anuj Kumar Singh sir to please deliver the inaugural address. Respected sir. Thank you, Prakash. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Good morning, all. This is as Mr. Prakash has just brought out. This
webinar on the gender sensitization is a very important subject which touches one and all. More sensitivity is required on part of all the government officials, especially the police personnel, while dealing with the women workforce. It is incumbent on us to create a better and congenial environment for working of the women officials personnel in our respective department. As you are aware, CAPT conducts such seminars on a regular basis, such seminars and webinars to sensitize large number of officers, not only from the police, but judiciary and other departments also. Today we have speaker Sutapa Sanyal, ma'am, IPS retired DGP UP, for the keynote address this webinar. She has been a pioneer in working for women workforce, for women empowerment, and she has vast experience while dealing with the women workforce under her during her tenure as DGP Uttar Pradesh. Now, I won't take much time and request Prakash to take forward this webinar. Prakash. Thank you so much, sir, for giving a momentum to this webinar. And now, before starting the proceeding, I would like to introduce our eminent speaker, Sutapa Sanyal ma'am, with all the participants. Sutapa Sanyal ma'am is a speaker, writer, and advisor. She was the first woman IPS officer to serve as District General, as Director General, DG in Uttar Pradesh. So that I would like to request all the participants to please mute your mic. Kindly mute your mic. Sir, kindly unmute yourself. Sorry, my mic was muted. Yeah. So, I think we can do away with the introduction and get on. Just 1 minute, ma'am. Just 1 minute, ma'am. Ma'am, the area of specialization includes law, governance, and risk and compliance, training and capacity development, gender diversity and inclusion, security and safety in the workplace, and socio-economic development. Ma'am also has extensive experience in risk evaluation and fraud prevention, detection, and investigation. As DG Police, she conceptualized and led the UP Police Mahila Samman Prakost (MSP), an award-winning ISO certified police unit for protecting and empowering over 17 crore 170 million women and children in India's most populous state.
She also initiated smart city, safe city initiatives across Uttar Pradesh based on a model of gender sensitive community policing. Within the PPP framework, ma'am was appointed as the chairperson of the Internal Complaints Committee (ICC) of the UP Police under the SHW Act. She has also worked closely with FICCI, Ernst and Young Scope and THDCC for better implementation of POSH. She has served as advisor security to GAIL India Limited and a prolific speaker. Ma'am has delivered talks at a variety of organizations like Interpol, London School of Economics, Scope, FICCI, CIL, THDCC, and IIM. So we are very fortunate that from a very busy schedule, ma'am has spared her valuable time for this webinar. And now, without wasting much of time, I would like to request Honorable Ma'am to please start today's program by her talk. Respected ma'am. Unmute me. Yeah. Ma'am, you are unmuted, ma'am. We can No, hear no, you. no. Can you hear me? Because it's showing. Yeah, we can hear you, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So good morning, everybody. Thank you very much, CAPT, for having me here today. So the topic is gender sensitization. I would like to tell all the participants, I don't know if there are women in the audience or not. I'm not aware of it, but most of these things started with my own experience. And then I went back to the theory of it, and then here is the PPT in front of you. So I'll be talking of a number of things, but it won't be that gender, that general lecture on gender sensitization. It will contain a lot of other things, which have shaped my opinion on this issue and what I've seen around me. So first of all, if we go to the definition and characteristics of gender, well, you will see that gender is not something which a man or a woman is actually born with, right? It is always a kind of perception in the society in which we live, the perception of other people towards our biological state, महिला है पुरुष है, ठीक है? But gender is something which is a social attribute. So we will think of certain things, okay, if he is a male, he is this. So we have, each one of us has a notion about male gender and female gender. तो आप देखेंगे सारी चीजें क्या हैं. Another, what we feel that as a woman she would be or she is, or what we feel as a man what he would be or what he is, right? तो ये social concept हो गया. अब social concept है तो कई चीजें उसको influence करेंगी, जैसे the culture, the narratives, हम लोग किस तरह से बातचीत करते हैं, क्या एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, and of course it will be reflected and reflect upon हमारे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमने क्रिएट किए हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हमने बिल्ड किए. नाउ द वेरी डेफिनेशन ऑफ जेंडर से आपको दिखेगा कि इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट. आपके स्टोन एज में एक कॉन्सेप्ट रहा होगा जेंडर के बारे में. टुडे इन टुडेज एज देयर विल बी अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, and this concept has undergone a lot of historical change down the line. तो ये भी हम लोग को समझना पड़ेगा कि this is not something which is fixed, right? अब हम, obviously I will go to the comparison between the sex, that is the biological difference, and the gender, which I said is a socio-cultural difference, जो कि economic के क्षेत्र में भी, economics के क्षेत्र में भी reflect करता है, हर जगह reflect करता है. That is what we have around us, right? अब it's very obvious that the biological जो differences है वो रहेंगे. They are difficult to change. Of course, now you have medical methods in which you change it.
And right, across the history, ये जो sex differences हैं, they have just been there and they will be there, right? पर अगर जेंडर क्या है, अगर सोशियो कल्चरल डिफरेंस है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस है, तो वो बदलेंगे एंड देयरफॉर दे कैन बी चेंज्ड. एंड दिस इज अ गुड पार्ट ऑफ इट, दैट ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना अबाउट कि मेल है तो ऐसा है, महिला है तो ऐसी है, इसमें कमजोर है, वो उसमें मजबूत है, those things can change. So this is the best part of it. And history के different points of time पे different concepts about जेंडर रहे हैं, जेंडर रोल्स रहे हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स रहे हैं, तो ये सारी चीजें कैन बी चेंज, राइट. एक ये आप देखेंगे, शी इज अ वेरी फेमस राइटर. नाउ लुक व्हाट शी सेज. The problem with gender is that it prescribes, not the words, prescribes problem how we should be. ठीक है, क्यों? क्योंकि social concept है, psychological concept है. So how we should be rather than recognizing how we are. यहीं से सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. जहां तक बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इट इज फाइन, बट हियर इन कम्स द प्रॉब्लम्स. अब ये नेक्स्ट और आप देखिए स्टेटमेंट. शी इज आल्सो अ फेमस ऑथर and an activist kind of author. So look what she says now. One is not born, but rather becomes a woman. Right? You become a man or woman. हम केवल woman नहीं कहेंगे, you become a man also. क्योंकि हम, if I get time, I will also talk of the concept of positive masculinity. कैसे society, even with males, ऐसा expectation डालते हैं कि males के अंदर जो emotions होने चाहिए, उसको हम लोग बचपन से ही खत्म कर देते हैं. So you also become a man, just as you become a woman. Become. इस word को ध्यान करिएगा, become. So now I move on to कि क्या क्या हमारे cognitive biases होते हैं हमारे. I think थोड़ा सा हम इसको छोटा करें. ठीक है. So is somebody saying something? अच्छा नहीं. No ma'am, no ma'am. Please Okay, continue. fine. So देखिए, as human beings हमारे we have cognitive capabilities. Cognitive capabilities मतलब जो capacity हम में है to understand या recognize things, right? Recognition. अब unfortunately all of us, right, we have our mental biases. हमारे mind में बहुत bias रहते हैं vis-a-vis the other person, and these are a category of biases जिसपे जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज करती हैं. क्या है? एंकरिंग बायस होता है. जो भी पहला इंफॉर्मेशन हमको इंसान के बारे में मिलेगा, हम उसी पे उसको जज करेंगे. ठीक है. जो भी पहला इंफॉर्मेशन हमको एक वुमन ऑफिसर लीजिए या कोई भी लीजिए, वुमन के बारे में मिलेगा, आई विल जज हर एंटायर लाइफ ऑन दैट इंफॉर्मेशन. अवेलेबिलिटी बायस. कोई भी अगर इमीडिएट इंफॉर्मेशन या एग्जाम्पल अवेलेबल है, तो फिर बाकी सब चीज हम उसी पे डिटरमिन करेंगे. सपोजिंग आई हैव a piece of information available about my co-worker who is a female, कि अरे भाई इसके घर में प्रॉब्लम्स है, इनके घर में काफी फैमिली इश्यूज है. नाउ माय एंटायर जजमेंट अबाउट हर वुड बी कि चूंकि इसके घर में ये प्रॉब्लम्स है, इसलिए ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है. सो दिस इज अनदर बायस. एंड रिमेंबर, इंसान के माइंड में जो बायसेस होते हैं, दिस इज अ मेंटल शॉर्टकट. हमारे माइंड में our brains receive so much of information in every second that it's very difficult to segregate these pieces of information. तो हम क्या करते हैं, लोगों को टोकरियों में डाल देते हैं, baskets. अरे ये इसका ऐसा है तो ये ऐसा ही है. So that is something which is very, very important in shaping our behavior towards others then. And it is very, very visible in biases which we have towards women, women co-workers, women in the family, women in society, etc., etc. Then we have bandwagonism, herd mentality.
hurt. Please don't talk amongst yourselves, नहीं तो फिर हमें भी कुछ कुछ सुनाई देगा, फिर I'll get distracted और आपको भी फायदा नहीं मिलेगा इन चीजों, because these things you need to know, because these are all, you know, human beings are affected by all these things. Then we have the herd mentality or group thing. मेरा group जो सोच रहा है बस हम भी वही सोचे, अपना दिमाग ना लगाए. Then choice supportive biases, हम over फोकस करते हैं एक चीज पे. अगर एक डिसीजन हो गया तो उसके चाहे कितने बेनिफिट्स हो हम, या चाहे कितने फॉल्ट्स हो, हम बस उसी पे, उस डिसीजन पे फोकस करेंगे और उतना ही देखेंगे. इसी तरह से कई चीजें, कंफर्मेशन बायस है हमारा. अगर प्रीवियस व्यू है अबाउट एक्स कोवर्कर हु इज अ फीमेल कि अरे इसने तो ऐसा इसके साथ हुआ था, इसने ऐसा किया, then that is enough for me to judge her entire life. So these are some of the cognitive biases. And gender bias जो होता है इन्हीं चीजों से शुरू होता है. इसलिए देखिए हेलो इफेक्ट है. अगर हम सोचते हैं कि there is a man who does a thing, X thing nicely, he will do Y, Z, A, B, C, D हर चीज अच्छा. तो these are biases जो हमारे दिमाग में हमेशा प्ले करता रहता है. And it happens more when there is a woman co-worker or when we are dealing with a woman. Last वाला देखिएगा, this is a very important thing, gender fatigue. ये organizations में होता है, इंसानों में भी हो सकता है. ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि लुक हमारे यहाँ तो कोई जेंडर बायस नहीं है, कोई जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, वी आर सच एन इक्वल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज वाले हम ऑर्गेनाइजेशन है. इट इज ऑलवेज विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये भी एक एटीट्यूड है, ये भी एक बायस है कि सारा प्रॉब्लम तो अगले में है, हम तो बस बहुत अच्छे हैं, ठीक है. सो दीज आर थिंग्स विच वी मस्ट रिकॉग्नाइज. नॉर्मली नौकरी चाकरी या डे टू डे रोजमर्रा के काम में we don't step back to, you know, look at ourselves. We have to evaluate ourselves, what we are thinking of others, where we are going, right? Next आपका आया stereotyping. ठीक है, stereotype क्या है कि we start assigning traits और labels. अगर आप ग्रुप ए देखेंगे, आप हम अगर नहीं बताते हैं कि ये किस जेंडर के टुवर्ड्स पॉइंट करता, आप अपने आप समझ जाएंगे. अगर हम ये शब्द इस्तेमाल, नाउ लैंग्वेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन जेंडर सेंसिटाइजेशन. तो अगर हम ये शब्द इस्तेमाल करें कि सो एंड सो इज नॉन एग्रेसिव, डिपेंडेंट है, सबमिसिव है, पैसिव है, इमोशनल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, टॉकेटिव है, बहुत बात करते हैं, जेंटल है, बहुत रोते हैं, ठीक है ना, बहुत नर्चरिंग नेचर है, तो क्या पिक्चर बनता है? इट इज द पिक्चर ऑफ अ वुमन, राइट, यानी फेमिनिन ट्रेट्स का. तो आइए आप एक, हम आपको सेट ऑफ वर्ड्स, व्हाट वाज दैट, किसी ने कुछ क्या कमेंट किया क्या, और शुड आई इग्नोर ऑल कमेंट्स एंड जस्ट प्रोसीड? ठीक है, या फिर हम एक लिस्ट आपको देते हैं, अग्रेसिव है, इंडिपेंडेंट है, बड़ा नॉन इमोशनल है, डिसाइसिव है, रोता नहीं है, एनालिटिकल है, ठीक है, not easily influenced, non-nurturing. So these are attributes and traits and labels which we give to the men in society. अब आप सोच के देखिएगा ये सच है कि नहीं, right? It is true. I don't want to interact too much, नहीं तो फिर सारे माइक ऑन करेंगे जवाब देने, and then it will be a mess. और हमको एक ही घंटा टाइम मिला है, 1 घंटा या I don't know 45 minutes, whatever. So now I move on to the next slide. अब क्या होता है जब हम हार्मफुल आउटकम्स हम देखेंगे ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग. नाउ आई एम बीइंग न्यूट्रल, अगर मौका मिला तो हम पार्ट 2 भी बोलेंगे कि मेन के अगेंस्ट भी क्या क्या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है. इट्स नॉट जस्ट विमेन, पर होता क्या है कि बिकॉज विमेन आर लेस इन द फोर्सेस और लेस इन द नौकरी या व्हाटएवर, ये चीजें ज्यादा खुल के आती हैं. तो हार्मफुल, इसी से हम लोग जब भी जेंडर की बात करते, वी टॉक ऑफ विमेन, बट वी कैन ऑल्सो टॉक ऑफ मेन, एंड वी शुड, राइट, क्योंकि दोनों मिलके ही समाज बनाते हैं ना. एंड देन व्हेन वी टॉक ऑफ यू नो transgenders, then it's third gender. We must also think of them. They are also a part of society.
केवल वुमन ही नहीं है या केवल मैन ही नहीं है या केवल ट्रांसजेंडर्स हैं. सो यू नो इट्स एन एंटायर स्पेक्ट्रम व्हेन वी टॉक ऑफ जेंडर. बट फॉर पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बेटर, जब हम जेंडर की बात करते हैं वी टॉक ऑफ विमेन, राइट? तो लेट अस बी क्लियर अबाउट इट, राइट? सो अब होता क्या है, अगर हम किसी का भी, अगर हम मेल के बारे में भी हम सर्टेन स्टीरियोटाइप्स बना लें, अरे कि ये तो ऐसा ही काम इसको ही करना चाहिए, जिंदगी भर हिस्टोरिकली यही काम होता रहा है, हाँ वुमन है तो ये कर नहीं सकेगी, ठीक है, मेल डोमिनेटेड, कहाँ मेल डोमिनेटेड प्रोफेशंस में जाएंगे, घरों में भी एडवाइस करते हैं. हमें भी एडवाइस मिला था कि या तो लेक्चरर बन जाओ या जज बन जाओ या साइंटिस्ट बन जाओ, दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट? बिकॉज कहाँ पुलिस में जा रहे हो, इट्स अ मेल डोमिनेटेड प्लेस, प्रोफेशन, ये वो. तो these are stereotypes. When we think that a woman can do only A, B, C, D or a man can only do X, Y, Z. But क्या हम कर सकते हैं, मेरी क्या capability है, that is a very personal thing. It's about a human capacity. It's not about a man's capacity and a woman's capacity. And I don't need to give proofs because it has been proved in the world कि कोई भी अगले का भी काम कर सकता है, right? A man can look after a family and a woman can conquer the Everest. So वो चीजें अब थोड़ा सा हमको बदलना पड़ेगा. Now what happens अगर हम उसी में स्टक हो गए, जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में ही सोचने लगे, it leads to gender discrimination और आगे फैमिलीज में या वर्क स्पेसेस में भी, रिलेशनशिप्स में भी, it leads to gender based violence. It impacts self-esteem and self-image of a woman. एक इम्पोस्टर सिंड्रोम करके होता है. अगर हमेशा हमें ये मैसेज मिलता रहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम करके एक चीज होती है जो विमेन में बहुत ज्यादा होता है. नॉट दैट ओनली इन women but also in men it can happen, but it happens more in women. Imposter syndrome होता है is a syndrome of self doubt. Am I good enough? क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हम कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जो अगले को पता चल रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है. So that is a self doubt, and self doubt is a very very damaging emotion. चाहे मैन में हो या वुमन में हो. अगेन आई विल से वुमेन में ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द सोशल नॉर्म्स, द सोशल मैसेजेस दे गेट, द सोशल नैरेटिव्स दैट आर आउट देयर इन सोसाइटी, राइट? थर्ड क्या होता है कि इट प्रमोट्स लैक ऑफ एम्पैथी. आप एक वुमन को पहले से ही जज कर लेते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही होगी. तो एम्पैथी, कंपैशन, जो बेसिक ह्यूमन ट्रेट्स है वही खत्म हो जाता है. And it's very important. There are people from prosecution, I'm not aware judiciary से हैं कि नहीं, ठीक है, पुलिस से तो है ही है. If as a police person, ठीक है, you have a pre-judgment about women, तो आप तो उसी नजरिया से हर women victim, women survivor को देखोगे ना. तो आपकी ओर से अगर ये मैसेज गया, उसकी ओर से क्या आ रहा है ये भी सुन लीजिए. There's a culture of silence. आप उसको प्री जज कर रहे हैं, एम्पैथी खत्म हो गया, कंपैशन, अरे तो ऐसे ही है. फिर आप उसको विक्टिम भी ब्लेमिंग करेंगे कि अरे तुमने ऐसा किया इसी से तुमको ऐसा हुआ, राइट? एंड दिस हैपेंस नॉट जस्ट इन प्रोफेशंस, घर में भी होता है. सो वी हैव टू बी, फर्स्ट वी हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स एंड देन स्टॉप आवरसेल्व्स. अपने को रोकना पड़ेगा, अपने को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि अरे हम तो ऐसे नहीं कर रहे, राइट? बिकॉज रिमेंबर, आप एज अ पेरेंट, आप एज अ को-वर्कर जो करेंगे, दैट बिकम्स अनदर स्टैम्प ऑन सोसाइटी का बिहेवियर टुवर्ड्स women. And tomorrow your daughters and your granddaughters are also going to suffer this, just as women of my age have suffered, and just as women of the latest young category women are suffering. तो ये हमेशा याद रखिएगा. हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग कुछ भी दुनिया में कर दे, अरे हम तो निकल जाएंगे. नहीं, यही तो कार्मिक कॉन्सेप्ट है, वापस आएगा आप पे नहीं आएगा, आप पे बच्चों पे आएगा, आपकी बेटी पे आएगा, आपकी ग्रैंड डॉटर पे आएगा. सो बी वेरी वेरी केयरफुल इन हाउ यू बिहेव टुवर्ड्स अनदर पर्सन. और फिर प्रिवेंट्स डिलीवरी ऑफ जस्टिस. अगर कोई वुमन हैज बीन विक्टिमाइज्ड, अगर उसके बारे में पहले से ही हमने प्री जज करके कॉन्सेप्ट बना लिया,
तो फिर हम जस्टिस कहाँ से देंगे उसको, राइट? सो एंड देन a woman cannot achieve a full potential. कैसे? Because her choices will be narrowed. अगर हम कह दें कि अरे पुलिस तो लेडीज के लिए है ही नहीं, स्पेस में कहाँ जाएगी, साइंटिफिक रिसर्च में क्यों जाएगी, कैसे जाएगी, तो we are limiting her choice of roles, we are limiting her opportunities. और अंत में क्या हो रहा है? We are limiting her contributions to society, to the culture, to the nation, to the world. So see what the consequences are. एक छोटा सा हमारा एक्शन, वो कहते हैं ना बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, आप कुछ भी करेंगे वो जाके 10 लोगों को और इम्पैक्ट। तो एक बार स्टैंड बाय किसी और कर ले, मैं वैसे कोशिश करूंगा। You have to be very cognizant about all these things. तो ऐसे बिहेवियर से क्या हुआ? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से वुमेन की अपॉर्चुनिटीज कम हो गई, एक्सेस टू रिसोर्सेज कम हो गए। फिर इन चीजों का एक बहुत हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। देयर इज अ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस ऑल्सो। आप देखेंगे कि विमेन का पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, दिस इज एन ILO स्टैटिस्टिक्स, इट इज देयर एवरीवेयर, ठीक है ना? आप वैसे भी अपनी आंखों से भी देखेंगे तो आप समाज में आपको दिखेगा, कोई डेटा आप पे हो ना हो। See, so women do not want to participate in the labor force. They feel there are so many people judging us. There are so many people saying so many things to us. Sexual harassment तो अलग चीज है, workplace तो होता ही है, and I'm sorry to say it happens in the police also. We cannot close our eyes to it. I was there in, जैसे प्रकाश ने बोला, I was heading the ICC. There were cases. तो ऐसा नहीं है कि everything is hunky dory in these services, हर जगह है। पर अगर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग करोगे, डिस्क्रिमिनेशन करोगे, तो यही सब आउटकम होगा। एंड देन हु वुड वांट टू गो टू अ प्लेस वेयर देयर इज सेक्सुअल हरासमेंट, या हर घड़ी कोई आपको जज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि घर में भी नहीं है, नॉट सेइंग दैट, पर वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन इन्हीं कारणों से कम हो जाता है। सेकेंडली, एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। somehow there is this stereotype in most of the people's mind कि केयर वर्क जो है, केयरिंग वाला काम केवल वुमन ऑफ द फैमिली करेगी। व्हाई? मेल नर्सेज नहीं होते हैं क्या? सो वी हैव टू थिंक, most of the times we are not thinking on all these issues. एक तो कारपेट के नीचे सब ब्रश कर देते हैं, कोई भी डिस्कम्फर्ट वाली बात होती है तो उसको चलो हटाओ खिसकाओ। नो, because it is going to impact the next generation. और आपके बच्चे, आपके grandchildren will be in that next generation. So हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। So last point वही है, impacts the coming generations. Generations to come में impact होगा, ये याद रखिएगा। आज जो भी हम करेंगे वो कर्मा के रूप में वापस आएगा, हम पे नहीं तो हमारे बच्चों पे। So the need for gender sensitization, but first we'll understand what is gender sensitization. हम आपको छोटे छोटे hints अभी तक दे रहे थे, अब I'll put them down here. तो क्या करना है? एग्जामिनिंग आवर पर्सनल एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड बायसेस। ये चीज हमेशा करते रहिएगा, इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। जेंडर सेंसिटाइजेशन आप एक वर्कशॉप अटेंड कर लिया, मेरी बात सुन लिए, उससे नहीं होगा। यू हैव टू, these are personal things you have to questioning the realities जो हम लोग को बताया जाता है, जो नैरेटिव हम लोग को दिन भर में सुनने को मिलता है कि महिला ऐसी है, पुरुष ऐसा है, ऐसा काम कर सकता है, ये नहीं कर सकती। इसको क्वेश्चन करना है, सवाल करना है कि भाई क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं एक फादर अपने परिवार को वो नर्चर दे सकता है जो एक एक्सपेक्टेड है कि मदर दे? दोनों कर सकते हैं, और दोनों को कर भी है। आप सवाल करिए, जो स्टेटस को है उस पर सवाल करिए, उसको क्वेश्चन करिए, एंड देन बिकमिंग अवेयर ऑफ द नीड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। माइंडसेट अगर हम वही लिए चल रहे हैं पुराने जमाने की, आज तो दुनिया बहुत बदल गई, तो हमें अपना भी इंट्रोस्पेक्शन करके अपनी भी माइंडसेट बदलनी पड़ेगी, राइट? कि यस, अ वुमन कैन डू ऑल दीज थिंग्स, अ मैन कैन ऑल्सो डू ऑल दीज थिंग्स। फिर अपना बिहेवियर मॉडिफाई करना पड़ेगा।
अपना अपना तो अवेयरनेस बढ़ाएंगे, आसपास जो है उनकी भी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। और लास्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इज इंस्टॉलिंग कंपैशन एंड एम्पैथी। ठीक है, what is the difference between human beings? I mean, we are also animals, but humans as animals and other animals, we can empathize. किसी का दर्द हम समझ सकते हैं, किसी की तकलीफें समझ सकते हैं। And how do we understand? When we change our mindset, when we open our minds कि हाँ ये भी एक reality है. Yes, this is a reality that women are being discriminated against. नहीं तो अगर हम मान ले कि जी ये सब तो है ही नहीं, रिमेम्बर जेंडर फटीग हमने बोला था थोड़ी देर पहले कि वो सब तो अगला करता, मैं तो नहीं करता या मैं नहीं करती, राइट? सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब नीड क्या है, बातों बातों में नीड भी आपको समझ में आ गया होगा। जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर अवेयरनेस इज अ वेरी बिग टूल। ये एक बहुत बड़ा हमारे पास अस्त्र शस्त्र, एक औजार है। किस चीज के लिए? फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अवॉइडिंग दीज जेंडर बायसेस एंड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आप पढ़ते भी होंगे कॉर्पोरेट्स में बहुत ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, ग्लास सीलिंग, लीकी पाइपलाइन, लीकी बकेट्स, ग्लास एस्केलेटर्स। इनके पीछे मतलब ये है कि एज अ वुमन शी इज फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग, और इसलिए ये एक लेवल के ऊपर जा नहीं सकती। ठीक है, एक लेवल के ऊपर आप ये भी नोटिस करेंगे कॉर्पोरेट्स में और अदर ऑर्गेनाइजेशंस में कि शुरू में तो कई महिलाएं आती हैं नौकरी में, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट एज दे क्लाइंब अप द लैडर, एज दे बिकम मोर एंड मोर सीनियर, दे जस्ट ड्रॉप आउट, दे जस्ट लीव। अभी कोविड के टाइम पे भी एक दुनिया में कॉन्सेप्ट आया था द ग्रेट रेजिग्नेशन करके, बहुत लोग रिजाइन कर रहे थे नौकरियों से, एटसेट्रा एटसेट्रा। There were several reasons, but अगर आप देखेंगे तो more women resigned than men. आप अगर थोड़ा सा और डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि more men came back to the jobs than women came back. रिटर्न भी women का कम हुआ। क्यों? One of the main reasons was कि it is believed, and this is a stereotype, कि अगर जो केयर वर्क घर में करना है तो वुमन करेगी। अब आप थोड़ा सा पॉज करके सोच के देखिए, हाउ फेयर इज दिस? इट्स नॉट फेयर। ठीक, और हम क्या कर रहे हैं? हम लिमिट कर रहे हैं ना भाई। आई एम लिमिटिंग वन टाइप ऑफ जॉब टू वन टाइप ऑफ पीपल। सो देयरफॉर नीड है सेंसिटाइजेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए। फिर आप दूसरा नंबर पे देखेंगे, most organizations are, and they should, they are talking of diversity, equity and inclusion. ये कहाँ कहाँ काम आता है? अगर हम डिवर्सिटी में नहीं विश्वास करते हैं कि हाँ हर तरह के लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहिए, अगर हम इक्विटी, अगर हम इक्वालिटी एंड इक्विटी की बात नहीं सोचते, अगर हम इंक्लूजन की बात नहीं सोचते कि अगर कोई आया है तो दे शुड फील दैट दे बिलोंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, वी आर लूजिंग आउट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स जो कि एक इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है। तो ये कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करेगा? इस फील्ड में नेगेटिव एटीट्यूड, अगर जेंडर अवेयरनेस नहीं होगा, जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं होगा, रिक्रूटमेंट में रिटेन आप नहीं कर पाएंगे, महिलाएं कुछ दिन आएगी चली जाएंगी। एंड I always say this, I experienced lack of inclusion in my own service days. मेरे को कभी कभी लगता था कि हम कहाँ आ गए, बिकॉज हमारे टाइम पे देयर वाज नो डिवर्सिटी। गिन चुन के 2-4-6 महिलाएं होंगी, 10 महिलाएं होंगी, right? So you don't get the feeling of belonging. The organization is not able to give you that feeling of belonging. No, you matter to us, right? You can do so much for us. But फिर धीरे धीरे I started thinking about all these things कि why does this happen? And so here I am with all my whatever knowledge I have, whatever I could put in the PPT, ताकि आप लोगों के साथ ये ना हो, right? Because there was a lack of diversity in police when we joined back in 1985.
इसी से वो सब आउटकम होता था। अब ये सब चीजें खत्म हो जानी चाहिए एंड मोर women should come, they can contribute a lot to society। पर अगर आप बायस्ड रहेंगे, आप में अवेयरनेस नहीं रहेगा, ये सेंसिटिविटी नहीं रहेगा, what is the point, right? इसी से ये जरूरी है। प्रेजुडिस होगा, आपको प्रेजुडिस होगा ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट। आपको जब किसी एक महिला को फील्ड का कोई जॉब देना होगा, देयर विल बी प्रेजुडिस। I have suffered it, right? So we should not repeat our mistakes. हमारे जनरेशन का मिस्टेक आपके जनरेशन को नहीं करना चाहिए, फ्यूचर जनरेशंस को नहीं करना चाहिए, राइट? एंड देन अनदर नीड क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे इवैल्यूएट करेंगे? कुछ चीजें हम देखेंगे, कुछ पैरामीटर्स भी हैं, कुछ चीजें आपको ऑब्वियस भी है। क्या वो महिला वहां कंफर्टेबल फील करती है उस ऑर्गेनाइजेशन में? क्या इज शी एबल टू गिव हर बेस्ट, ऑप्टिमल बेस्ट? Does she feel okay, I belong to this organization, ये मेरा भी उतना ऑर्गेनाइजेशन है जितना मेरे मेल कॉलीग का है? These questions become very important। और फिर बेंचमार्किंग भी इसी से होती है कि ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन। एंड बिलीव मी, आजकल के बच्चे जब नौकरी एक्सेट्रा ढूंढने जाते हैं, वो इन चीजों को देखते हैं। क्योंकि आई एम ज्वाइनिंग एक्स ऑर्गेनाइजेशन, डज इट वैल्यू gender equality, does it have diversity, does it talk of inclusion? नहीं तो नहीं जाते हैं बच्चे ऐसे फर्म्स में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में। सो दिस इज बिकमिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और इसको केवल आप लॉ के एंगल से ही मत देखिए, दिस इज एक्चुअली बिजनेस प्रिंसिपल नाउ। हम नेक्स्ट जो पॉइंट्स आपको दे रहे हैं, जैसे ESG इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस। और ये जो चीजें हैं, जेंडर है, डिवर्सिटी है, इंक्लूजन है, ये सब सोशल और गवर्नेंस में आता है, ठीक है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दुनिया काफी बदल गई है। और अगर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप बिलोंग करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन अगर पेस नहीं रख पा रहा है इन चीजों के पास, तो वो फिर बिखर जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज टू अपग्रेड इटसेल्फ, एंड इंसान को खुद को भी अपग्रेड करना पड़ता है। सो दोज टू थिंग्स विल गो टुगेदर। उसके बाद जैसे हमने आपको बताया कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयर अगर होता है, and this label is very important for an organization, तो वहां पे क्या होगा? जेंडर मेन स्ट्रीमिंग होगी, महिलाओं को नौकरी दी जाएगी, इंक्लूसिवनेस की बात आएगी, एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, जेंडर सेंसिटिव एंड जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग होगी। बजटिंग जस्ट डज नॉट मीन कि आपने एक पैसा अलॉट कर दिया। यहाँ बहुत सारे लोग पुलिस से हैं या फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एटसेट्रा, आप अभी तक कई सालों तक फॉर द विमेन सेपरेट टॉयलेट नहीं रहा पुलिस थानों पे, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट एलोकेटिंग मनी, ये सोच भी इंपॉर्टेंट है। एम आई सेंसिटिव इन माई थॉट्स? थॉट्स में होंगे तभी तो एक्शन में आएंगे। आपको एक छोटा सा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। इन CRPF, राइट, जो बॉडी प्रोटेक्टर्स होता है, man के requirements. Now, those body protectors were very, very uncomfortable for women. Now, when provisioning में a woman, a lady officer took over, this was one of the important things which she pointed out. और फिर body protectors की shape बदली गई, आप आज भी जाके देख सकते हैं. And the women now say we feel much more comfortable in this and we are able to perform much better in these things. तो अगर सोच ही नहीं होगी तो कहां से फिर जाके हम एक्शन करेंगे, राइट? Therefore, the need for awareness and sensitization. Again, I will give a disclaimer कि ये जरूरी नहीं है कि खाली एक woman ही sensitive हो. A man also can be and has to be sensitive also, right? उसके बाद कई सारे ऐसे statutes हैं, conventions हैं, protocols हैं, CEDAW है, SDG का जो concept है, उनमें भी ये
जो सेंसिटिविटी है, अवेयरनेस झलकती है। और फिर लास्ट में क्या है, जेंडर जस्टिस के, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस अवेयरनेस सेंसिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप जस्टिस दे पाए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जस्टिस इज ऑलवेज बिगर देन द लॉ। कभी कभी कानून को भी चैलेंज करना पड़ता है अगर इट इज नॉट गिविंग जस्टिस, बिकॉज इट इज मेंट टू गिव जस्टिस, उसका एकमात्र यही। अब हम आपको एक इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखाते हैं। You see? तो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है, लेकिन फिनिशिंग पॉइंट तक जाने के लिए लेफ्ट साइड में देखिए कितनी अड़चने हैं, एंड साइड में देखिए इट्स अ क्लियर पाथ। Not that I am saying that all men have this clear path in life. All I am saying is कि why does society presume कि ये काम महिलाएं करेंगी? It can be shared. This load can be shared. So again the idea is gender stereotype करते हैं। और फिर ये मल्टीटास्कर, एक मल्टीटास्किंग वुमन के आप देखेंगे, एक वुमन को जो नौकरी में है या बाहर काम कर रही है, घर पे भी कर रही है, आप देखिए कितने तरह की चीजें हैं। सो शुडंट वी चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन? सोच के देखिएगा। एटीट्यूड की बात आई तो दिस इज जजमेंट, राइट, बाय दीपक मिश्रा। कोई केस है, पवन कुमार। One is compelled to think and constrained to deliberate why the women in this country cannot be allowed to live in peace and lead a life that is empowered with dignity and freedom. It has to be kept in mind that she has a right to life. इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है कि किसी ने इस तरह से सोचा और वो इंसान जो सोचने वाला था उसकी सेंसिटिविटी और अवेयरनेस टुवर्ड जेंडर इश्यूज थी। This is another judgment in a sexual harassment case. ठीक है, डॉक्टर पुनीता के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें भी आप देखिए, perspective is important. कौन सा कोड? And a man may take, sexual harassment as a very normal thing. ये प्रॉब्लम्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। अरे तो क्या हुआ कि हमने कह दिया कि आप बहुत आज सुंदर लग रही हैं जीन्स में, है इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स फिजिकल स्पेस, प्राइवेट स्पेस, आप ऐसे नहीं बोल सकते। सो एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ लॉ नाउ, द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस जो एक्ट है उसका पार्ट है। केवल एक्शन ही करना, किसी महिला को छूना ही सेक्सुअल हरासमेंट अब नहीं है। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स भी is a part of sexual harassment. इसलिए सब जानना भी जरूरी है, right? Otherwise people can get into trouble. So what can be done about it? क्या हम लोग कर सकते हैं? भाई इतना तो सुन लिया, आपने भी सुन लिया, हमने बोल दिया, तो कर क्या सकते हैं? केवल प्रॉब्लम गिनाने से तो काम चलेगा नहीं। We have to look for solutions. So what are the solutions? So these solutions will come at various levels, various layers. अगर हम इंडिविजुअल लेयर पे देखें, इंडिविजुअल लेवल पे देखें, तो क्या है? इंट्रोस्पेक्ट, आइडेंटिफाई बायसेस, जो हमने कहा कि अपने को देखिए पहले। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले को तो बड़ी जल्दी जज कर देते हैं हम लोग। अगर आप देखेंगे, इफ यू इवन गो टू अ ग्रीन ग्रोसर, अगर आप सब्जी भी खरीदने जाएंगे, आप आलू भी यूं पलट के देखेंगे, बैंगन भी देखेंगे, पर इंसानों को कितना जल्दी जज करते हैं, राइट? इसलिए इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने को पहले देखिए। आइडेंटिफाई बायसेस, मेरे में बायस है कि नहीं? जरूर होगा। अनलर्न करिए, कई चीजें हम लोग लर्न करते चले जाते हैं जो बिल्कुल यूजलेस चीजें हैं, जो हमें ही नहीं रोकती हैं हाई परफॉर्मेंस से, अगले को भी रोकती है। अगर हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आ गए, अगर हम किसी सबऑर्डिनेट महिला के लिए हम कोई चीज हमें डिसाइड करना है, अगर हमारा बायस है तो हम तो कुछ और ही डिसाइड करेंगे, राइट? टू रिस्पेक्ट एंड लेवरेज द डिफरेंस। हर इंसान की अलग कैपेबिलिटीज होती है। अगर हम
महिलाओं को या पुरुषों को डब्बे में डाल दे, अलग अलग बॉक्स में डाल दे, तो उसका तो जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है वो तो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, और रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो हम उसका बेस्ट यूज कैसे करेंगे? How will the organization make the best use of its male and female employees अगर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है तो ये सब चीजें सोचने वाली बात है। और थोड़ा सा रोजमर्रा की जिंदगी से हट के अगर आप सोचेंगे, देखिएगा आपके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया खुल के आएगी, राइट? उसके बाद क्या है, क्या कर सकते हैं? हम लोग कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। वेल, चैरिटी के जैसा इक्वालिटी, जेंडर सेंसिटिविटी, हर चीज बिगिंस एट होम। सो बी वेरी वेरी केयरफुल और व्हाट सोशलाइजेशन प्रोसेस आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, राइट? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। और फिर जैसे हमने कहा, चैलेंज द स्टेटस को। अगर जो ये चीज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ये क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम अपनी बात कहेंगे कि साहब सही नहीं है। वो भी हिम्मत होनी चाहिए, वो भी करेज होनी चाहिए। अगर आप कुछ गलत देख रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप लड़के ही या किसी को धक्का दे के ही कुछ बोलो, बट यू मस्ट स्पीक अप। बहुत सारी चीजें जो हमारी सोसाइटी में जो कल्चर ऑफ साइलेंस है, इट्स वेरी डेंजरस, राइट? और बाईस्टैंडर एपैथी जिसको कहते, कुछ देख रहे होते हुए गलत फिर भी नहीं कह पा रहे, और फिर विक्टिम्स को तो हम लोग विक्टिम ब्लेमिंग करते ही हैं। तो हम क्यों जाके बोलेंगे कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर यही हमको अगले से सुनना है कि तुम जिम्मेदार हो, क्यों बोलेंगे? एंड रिमेंबर दीज थिंग्स, स्पेशली जब हम आपको एक बिकॉज आई ऑल्सो वर्क ऑन चाइल्ड इश्यूज, चाइल्ड के साथ जब भी सेक्सुअल अब्यूज होता है और वो बोल नहीं पाता है या डरता है बोलने से कि मेरा तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, स्पेशली अगर फैमिली मेंबर इज द परपेट्रेटर, तो वो आगे जाके बड़ा होके सारा वो चीज निकल के आता है। एंड लार्जली इट कम्स आउट इन वायलेंस। वायलेंस उसका आउटलेट फिर बन जाता है, एंगर आउटलेट बनता है, राइट? सो ऑलवेज, एंड द थिंग इज, सपोर्ट ग्रुप्स बनाइए जो इन बातों पे बात कर सके आपके साथ साथ। कभी कभी होता है कि मैं अकेला हूं, लोन स्वॉलो हूं, क्या जाके मैं बोलूं, तो देयर विल बी लाइक माइंडेड पीपल, उनको साथ लेके चलिए, सपोर्ट ग्रुप्स, राइट? और लास्ट में क्या है, ऑलवेज वॉक द टॉक। अगर जो आज हम ये सारी बातें आपसे कहते हैं और हम खुद ही जाके उल्टा करते हैं, देन व्हाट एम आई एम अ फ्रॉड ना, तो वो ना बनिए। If you believe, first believe in whatever we are discussing now. And once you believe it, उसको करिए, ठीक है ना? ऐसा ना हो कि जब आपका मौका आए and you have to, supposing I'm a mother-in-law and I talk of separate set of things for my daughter and a separate set of things for my daughter-in-law, हम गलत है ना? ये चीज ध्यान रखने का। Organizations क्या क्या कर सकते हैं? Examine if the organization is falling a prey to these biases. ये जितने हमने cognitive biases आपको दिखाए थे previous slide में, organizations भी victims बनते हैं इन चीजों के। फिर recruitment पे असर होगा, फिर job assignment पे असर होगा, right? फिर आप महिलाओं को retain नहीं कर पाता है organization, छोड़ के चली जाती हैं कि भाई हमको तो कोई मान सम्मान ही नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड देन ऑर्गेनाइजेशंस कैन बिल्ड अप द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज थ्रू ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स। हमने आपको पहले भी बोला था कि द गुड थिंग अबाउट कॉग्निटिव बायसेस, इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज्ड बाय थ्रू ट्रेनिंग्स या थ्रू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इवैल्यूएशन जब आप करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयज को सेफ स्पेसेस देना चाहिए जहां की वो ये सब बात कर सके। आजकल सेफ स्पेसेस व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हो सकते हैं या एक्चुअल फिजिकल स्पेस भी हो सकता है, जहां की ये बातचीत हो कि नहीं भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें गलत हो रही हैं। तो वो सेफ जगह भी तो चाहिए डिस्कशन करने के लिए। डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर कहाँ हम आगे बढ़ पाएंगे। एंड जो उसके बाद जब डिस्कशन होने लगेगा, ऑर्गेनाइजेशन के जितने लोग हैं उनका सबका फर्ज बनता है
कि एक ऐसा वर्क कल्चर जनरेट करे जो कि रिस्पेक्ट करे हर इंसान को, हर इंसान के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करे, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर वो कॉग्निटिव बायसेस जो हमने बात बताई, that will overtake the organization as well as the employees of the organization, और वो organization फिर it will just fizzle out, it will fade out। अगर हम समय के साथ अपने को नहीं बदले, अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को नहीं बदले, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को नहीं बदले, तो फिनिश हो जाएगा। और लास्ट में क्या है ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, जो भी आप जानिए इन चीजों का चैंपियन होता है, जो आगे आके इन चीजों को लागू करने की कोशिश करता है, उसको एग्जाम्पली रिवॉर्ड देना चाहिए। रिवॉर्ड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। हम लोग नॉर्मली वी ट्राई टू पनिश पीपल, दैट्स फाइन, पनिशमेंट भी हो तो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो, और रिवॉर्ड भी हो तो एग्जाम्पलरी रिवॉर्ड। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको तारीफ ही कर दो, कोई जरूरी नहीं कि आप उसको कैश रिवॉर्ड ही दे। ह्यूमन नेचर ऐसा है ना, अप्रिसिएशन ढूंढता है, तो उतना ही कर दीजिए, देखिए अगला कितना खिल जाएगा। Those things we shouldn't forget about all these things, but we tend to do. हम भी कई बार हम भी भूल जाते होंगे, but I have to keep reminding myself, right? अब ये एक पिक्चर देखिए, लोग अमूमन इक्वालिटी और इक्विटी में कंफ्यूजन करते हैं। इक्वालिटी क्या हुआ, ये 3 जने हैं, डिफरेंट हाइट्स के हैं, आपने सबको एक साइज का डब्बा दे दिया, ठीक है, सब खड़े हैं, किसी को तो पूरा दिख रहा है, साइज ऑफ द डब्बा सेम है, आप कह सकते जी हमने तो सबको एक स्केल पकड़ा दिया या एक कुछ भी दे दिया, मैं तो इक्वालिटी देख रहा हूं। बट इक्वालिटी एट टाइम्स डजंट वर्क। इक्वालिटी मे बी द स्टार्टिंग पॉइंट, बट इक्विटी इज इंपॉर्टेंट। सबसे जो इसमें कम हाइट का है उसको 2 डब्बे दिए गए, उससे जो थोड़ा ज्यादा हाइट का था उसका 1 डब्बे से काम चल गया, और जो सबसे लंबा है उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं। सो इसका क्या बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है कि जरूरत के हिसाब से, ठीक है, आप अगले का जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने का प्रयास करिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीडर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन द फैमिली, राइट? इस चीज को ध्यान रखिएगा, केवल इक्वालिटी का झंडा लेके चलने से वो डिजायर्ड आउटकम्स नहीं होंगे जो होने चाहिए, राइट? तो अब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हमने, मेरे माइंड में था कि आप लोगों से पूछेंगे, बट अगेन टाइम इज अ कंस्ट्रेंट। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी हम आपके साथ 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 हर स्लाइड के साथ हम बोलते चले कि अगर अवेयरनेस नहीं होगा, ठीक है, अगर सेंसिटिविटी नहीं होगी तो उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस नेगेटिव होंगे, और अगर अवेयरनेस है, सेंसिटिविटी है, तो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे जो आउटकम्स होंगे वो डिजायर्ड आउटकम्स होंगे एंड पॉजिटिव आउटकम्स होंगे। हम थोड़ा सा पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी की बात करना चाह रहे थे, बट आई थिंक मे बी सम अदर डे आई विल डू, क्योंकि इट इज अनदर एंटायर टॉपिक, कि कैसे ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से मेल्स आल्सो, दे आल्सो बिकम विक्टिम्स ऑफ इट। केवल फीमेल्स ही, महिलाएं ही नहीं विक्टिम होती है, तो ये भी एक अलग टॉपिक है। एनीवे, सो प्रकाश, आई थिंक इट्स 11:30 nearly and I should end for the next speaker. No, ma'am, you are the only speaker. You can take time as per your choice. We don't have any issue. तो हम थोड़ा सा ही बोल देते हैं पूरा, दिस इज अनदर एंटायर थियोरी, तो हम थोड़ा थोड़ा बोलते चलते हैं, आप इसको महसूस करिए जो हम बोल रहे हैं। देखिए, कभी कभी सोसाइटी में भी, परिवार में भी होता है कि अगर एक जॉब उपलब्ध है तो हम क्या सोचेंगे कि घर का जो मेल है उसको वो जॉब पे जाना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल थॉट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हमने स्टीरियोटाइप कर रखा है कि मैन इज द प्रोवाइडर, फीमेल प्रोवाइडर नहीं होनी चाहिए।
और इन चीजों का, इन थॉट प्रोसेस का बहुत बुरा असर होता है जा जाके आगे। देखिए तो फिर क्या होता है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होता है। क्या होता है, हम और समाज जो है एक प्रेशर डालती है एक मैन पे टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। क्या, माचो इमेज होना चाहिए, पुलिस में है ओके तो डंडा ही मारना चाहिए, राइट। पावर एंड स्ट्रेंथ, एंगर, एग्रेशन, सब कुछ दिखाना चाहिए। वो एंग्री मैन का बड़ा अच्छा इमेज मीडिया ने बनाया। Now you tell me how long can a normal human being be angry? How can you always be angry? पर यही हम लोग लड़कों को सिखाते, अरे रोता है, अरे चूड़ी पहन ली क्या, ठीक है, मैन अप मैन, यू आर अ मैन, इमोशन मत दिखाइए। दिस इज अ वेरी वेरी सिली थिंग जो हम करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स हैपनिंग एंड देयर इज टॉक्सिक फेमिनिटी आल्सो। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, अच्छा मैडम आपने तो मैस्कुलिनिटी की बात बता दी, फेमिनी, यस, women कैन आल्सो बी टॉक्सिक, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें फिर इन स्टीरियोटाइपिंग और डिस्क्रिमिनेशन का आउटकम यही आके निकलता है, राइट। देखिए बॉयज डोंट क्राई, अरे क्यों रोता है, क्राई बेबी है क्या, अरे क्यों नहीं रोएगा यार, उसको अगर दुख हुआ है मन में तो क्यों नहीं रोएगा। व्हाई आर यू कटिंग ऑफ इमोशंस फ्रॉम द ब्रेन ऑफ अ मेल चाइल्ड। फिर वो आगे जाके क्या बनेगा, एंग्री बनेगा, एग्रेसिव बनेगा, वायलेंट बनेगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट टाइप ऑफ पेरेंटिंग वी आर डूइंग। अगर हम लोग हमेशा लड़के को इसी तरह ताने देते रहेंगे, उसकी इमोशनल लिटरेसी कहाँ हुई है लड़के का। तो आगे जाके जब बड़ा हुआ उसने तो यही सीखा कि हमेशा हमको गुस्सा दिखाना है, हमेशा हमको अपने को प्रूव करना है कि आई एम बेटर देन माय सिस्टर। यू सी वेयर इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट। तो ये जो हम आज से आपसे बात कर रहे हैं इस विषय पे, जरा सोच के देखिएगा। एंड इट्स अ बिग यू नो इट्स अ बिग डिस्कशन पॉइंट विद पेरेंट्स, क्योंकि वहीं से शुरू होता है ये सब चीज। और गेट कीपर्स है समाज में मीडिया, हमने आपको बोला ना, एंग्री यंग मैन का एक दे दिया पिक्चर, ऐसे ही होता है। मान लीजिए कि अच्छा क्या, आई विल टेल यू, इट यूज्ड टू बी अ टिपिकल सीन, मे बी अब थोड़ा कम हुआ होगा। एक सीन आया जिसमें द विलन इज हरासिंग अ फीमेल, राइट। हीरो आता है, हीरो आके रोकने की कोशिश करेगा, तो विलन क्या करेगा, अपना स्लीव्स यूं रोल अप करेगा, 2 मिनट चुप होगा, यूं खड़ा होगा, फिर बोलेगा ये तेरी बहन लगती है क्या। आप सोचो ये क्या शब्द है, व्हाट, इट इज प्लेनली इडियोटिक, बट दिस इज व्हाट मेनी ऑफ आवर फिल्म्स प्रमोट। और फिर इसका क्या इम्पैक्ट होता है समाज में कि हाँ यही चीज होना चाहिए, फिर होता भी है। सो वी नीड टू बी अवेयर, हमको क्या फीड किया जा रहा है। सोशल मीडिया के एज में तो दिन रात आप सुबह उठ के ट्विटर पे चले जाइए, बस आपके दिन में, आपके जहन में, आपके दिमाग में पूरा जहर भर जाएगा। कोई किसी को कुछ बोल रहा है, किसी को बोल, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। फिर पीयर ग्रुप्स होते हैं, खाप पंचायत होते हैं, कैंगरू कोर्ट्स होते हैं, अपना जजमेंट दे दिया, इस औरत को बांध के पेड़ से मारो 50, ये क्या है यार, देयर इज अ लॉ ऑफ द नेशन। तो ये चीजें हमको, हम नहीं इन चीजों को देखेंगे, हम नहीं समझेंगे, हम इनमें बदलाव नहीं लाएंगे, तो हम क्या लेगेसी अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे हैं, ये सोचिएगा। ठीक है, अच्छी बात है, नौकरी हमने भी की, आप भी कर रहे हैं, पर व्हाट आर वी पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, जिसमें हमारा ही ब्लड लाइन जाएगा। थिंक ऑफ इट इन दैट वे। पीयर ग्रुप प्रेशर होता है, आई हैव सीन इट, नॉट दैट देयर आर men who don't want to help a woman out, लेकिन peer pressure इतना होता है कि वो भी फिर वही ग्रुप प्रेशर के साथ हर्ड मेंटालिटी में ही घुस जाता है, क्योंकि फिर उस पे ताने देंगे,
कि अच्छा बड़ा जाके उस महिला की ओर से बोल रहा था. We have to get rid of these toxic cultures. अब आपको हम एक, it is a cartoon, but it's not a very happy thing. So a man is also carrying all these burdens on his head. It's not a very happy situation. फिर इंसान की पर्सनालिटी डिस्टॉर्शन हो जाता है. एक आदमी के पर्सनालिटी में डिस्टॉर्शन यहीं से आते हैं, क्योंकि हर एक में, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, एक मैस्कुलिन एनर्जी है, एक फेमिनिन एनर्जी है, एंड वी हैव टू बैलेंस इट आउट. नहीं तो डिस्टॉर्शन सबसे पहले उस इंसान में होगा, फिर तो वो आगे जाके जो होगा सो होगा. राइट? तो यही देखिए, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है? सेल्फ सैबोटाज, सेल्फ वायलेंस. आप अगर नहीं भी चाहेंगे ऐसा बिहेव करने को, बाकी लोग आपको इंसिस्ट करेंगे. वही याद करिए, मैन अप मैन. लड़का हो रोते हो, लड़का हो लड़कियों की तरह चूड़ियां पहन रखी है, सॉफ्ट साइड अपना दिखा रहे हो. These are horrible things. स्कूल में आई हैव हर्ड बच्चे टॉन्टिंग अदर चिल्ड्रन, जिसमें थोड़ा सा भी मनुष्यता है, जिसमें थोड़ी सी भी अदब है, तमीज है, उसको बोलते हैं छक्का है क्या. What rubbish is this? And what are we as parents that we are teaching our children? And what is the school doing about this? ये सोचने की चीज है, नहीं तो समाज में रहना मुसीबत हो जाएगा. हमारे लिए भी होगा, अगले जनरेशन के लिए तो होगा ही. इसलिए वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. आप 1000 पोथी पढ़ लीजिए, थियोरी पढ़ लीजिए, जमीन पे क्या हो रहा है, दैट विल अल्टीमेटली डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ योर चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन. राइट? तो इसलिए इन चीजों से थोड़ा सा हम लोग को देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के. देयर आर हायर सुसाइड रेट्स इन बॉयज अक्रॉस द वर्ल्ड, बॉयज एंड मेन, क्योंकि उनको एक स्टैंडर्ड दे दिया जाता है. दे डोंट वांट टू डू दैट. उनका प्रोक्लिविटीज, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज दूसरे तरफ है, लेकिन स्टीरियोटाइपिंग है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है. हमेशा अपने को प्रूव करना है, और अगर एक वुमन सामने आ गई तो उसके ऊपर तो बस अपना साम्राज्य दिखाना ही है, चाहे थॉट में हो, चाहे एक्शन में हो, चाहे उसको टॉन्ट करके हम अपना मतलब ये दिखाएं, पावर दिखाएं, या उसको गाली देके. So these things are very important, and I feel CAPT is doing a big thing by taking up these issues. जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब ये नहीं है केवल कि आके एक जेंडर सेंसिटाइजेशन के कोर्स में बैठ गए. क्या आप लेके जा रहे हैं उसको, आप सोच रहे हैं, चर्निंग कर रहे हैं, उससे आप क्या निचोड़ निकाल रहे हैं, और उसको कैसे आप अपने डे टू डे लाइफ में आप यूज कर रहे हैं. अगर आप देखेंगे जेल में भी देयर आर मोर मेन देन विमेन. अगर शूट आउट होता है, मैसेकर होता है, यूएस में बहुत होता है, आप देखेंगे इट्स लार्जली अ बॉय और अ मैन. ठीक है, मोर मेन देन विमेन कमिट सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन. विमेन भी करती हैं, नॉट दैट दे डोंट डू इट, एंड द लॉ रिकॉग्नाइजेस एज सच आल्सो. फिर क्या करता है, यंग बॉयज एंड अडल्ट्स में बाईस्टैंडर एपैथी लाता है. सड़क पे अगर एक महिला को कुछ भी हो रहा हो, एनी इनडिसेंसी, और ये रोज इंसिडेंट्स आते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा. क्यों? एक तो चलो अपने लाइफ का फियर है, ठीक है. दूसरा है कि अरे महिला है, शी डिजर्व्स दैट. घरेलू मामला है. फॉर इयर्स द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज ट्रीटेड एज अ घरेलू मामला by the justice delivery system. How unfortunate, right? उसके बाद इमोशनल आइसोलेशन होता है मेन में जाके आगे. फिर हमेशा इमोशनली गार्ड करते रहते हैं अपने को, अरे आई शुड लेट माय इमोशंस डाउन. हमें तो बचपन में सिखाया था कि बॉयज डोंट क्राई. अगर मेरे आंख में आंसू आ गए या मैं अपना वीकनेस दिखा दिया तो मैं तो पुरुष ही नहीं रहा. See what the society is telling you. See what the narrative society is giving you. That's why I request all of you, challenge these things. जब तक नहीं चैलेंज करेंगे समाज नहीं बदलेगा.
आप कोई भी कानून बनाते रहिए। अब और क्या हार्श कानून बन जाएगा कैपिटल पनिशमेंट से? रेप के लिए तो है कैपिटल पनिशमेंट। क्यों नहीं रुकता? बिकॉज माइंडसेट है कि वुमन इज इंफीरियर, वुमन इज वीक, वुमन इज एन ऑब्जेक्ट। देखिए, कानून तो अपना काम करता है, करना भी चाहिए। क्या हम अपना काम कर रहे हैं? क्या समाज अपना माइंडसेट बदल रही है? एंड दिस इज वेयर जेंडर सेंसिटाइजेशन, अगर जो कुछ कर सकता है तो करे, वरना ये सब क्लासेस भी बेकार है, राइट? So if you as participants could think about all these things after you go from here, देखिएगा बहुत फायदा होगा आपको ही नहीं, पूरे समाज को एंड द नेक्स्ट जनरेशन टू कम, राइट? ये टॉक्सिक कल्चर जो है, डोमिनेंस, पावर, ठीक है, ये सारे फिर क्राइम्स वहीं से शुरू होते हैं, वायलेंस शुरू होता है, सेक्सुअल वायलेंस वहीं से शुरू होता है, फिजिकल बीटिंग, मेंटल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस के जितने डेफिनेशन है सब यहीं से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हम एक महिला को एक पर्टिकुलर चश्मे से देख रहे हैं, वो चश्मा बदलना पड़ेगा, नहीं तो बियॉन्ड अ पॉइंट कानून नहीं काम कर पाएगा। आई एम सॉरी टू से इट, ठीक है? तो मेरा क्या है, छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज ट्राई टू स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। आपके खिलाफ भी जो मेन है आज के ऑडियंस में, आपके खिलाफ वायलेंस हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। यू आर बीइंग गिवन अ नैरेटिव कि आपको ऐसा बनना है। क्वेश्चन इट कि मैं क्यों ऐसा बनूं और क्यों ऐसा ना बनूं, जहां कि मैं कंपैशन भी दिखा सकूं। व्हाई इजंट कंपैशन एंड एम्पैथी अ मेल ट्रेट आल्सो? ठीक है ना, ये सवाल करिए। ऐसा नहीं है दुनिया में चेंज नहीं हो रहा, आप देखेंगे कई रियलिटी शोज भी आते हैं, यूनिवर्सिटीज कोर्सेज कर रहे हैं इन विषयों पे, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, डिक्लेरेशंस बन रहे हैं, इंडिविजुअल्स इन इश्यूज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सेलिब्रिटीज अच्छी बातें करते हैं एंड दे वॉक द टॉक ऑल्सो, ऐसा नहीं बोल के बस चुप हो गए। कैंपेन्स हो रहे हैं दुनिया में, आपने यूनिसेफ का ही फॉर शी भी सुना होगा, दिस इज वेरी फेमस कैंपेन। ये सारी चीजें एड्स एंड कैंपेन्स है। एड्स में बहुत चेंजेस आए हैं, ठीक है, आप अगर जाके देखेंगे गेटी इमेजेस में, लॉट ऑफ चेंजेस, राइट? सो चेंजेस आर हैपनिंग एंड लेट मी टेल यू, you know what Ken and Barbie are? These are dolls. Barbie वो फीमेल डॉल्स है और Ken is the male version of those Barbie dolls. Now look how beautiful this statement is. It is just as hard to be Ken as it is to be Barbie. It's very difficult to be a man also, and it is very difficult to be a woman. So why don't we, we have common concerns. एक बच्ची होगी, एक बच्चा होगा, ठीक है ना, उसको हमेशा घेरेगा कि अरे भैया मेरी सेफ्टी का इशू है। Not that boys are not violated, not that boys don't feel unsafe, ठीक है, मेरा बॉडी इमेज हम अपना पॉजिटिव है कि नहीं, हम कैसा दिख रहे हैं, एम आई अट्रैक्टिव टू द अदर पर्सन एक्सेट्रा, और हर एज में ये होता है। सो मैन को भी दिक्कतें हैं, सो यू मस्ट चैलेंज ये जो चीजें आप लोगों पे थोपी गई कि ओके ओनली यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू अर्न इन द फैमिली। व्हाई? क्यों मैं ही अर्न करूं अगर मेरी वाइफ या मेरी डॉटर इज इक्वली केपेबल, द जॉब शुड कैन एंड शुड गो टू हर आल्सो। So question kariye, unless you question, and then this is something which I love to show. You don't have you can't give a better gift to yourself than breaking these things. It's a pinjara. It's a cage where you have been caged as a man. Try to come out of it. बहुत अच्छी चीजें दुनिया में, much healthier thought processes and with healthier outcomes. You must first be convinced and then आप इसको एडवोकेट करिए। तो नया जो होना चाहिए, सम री-इमेजिनेशन, सम रीबूटिंग ऑफ आवर ब्रेन्स, देखिए इस तरह से होनी चाहिए। देयर आर ऑल सेलिब्रिटीज, कुछ तो ऐसे ही डाल दिए गए हैं, बट कुछ आर रियल, दे आर स्टेटमेंट्स मेड बाय से जस्टिन ट्रूडो है, you would obviously recognize him,
So all I want you as a man in society is to ask yourself, what was the definition of man that was, which you are expected to accept? क्या सोसाइटी आपको नैरेटिव दिया कि मैन कैसा होना चाहिए? उसी से आपको पता चलेगा कि सोसाइटी ने ये क्या नैरेटिव दिया कि वुमन को कैसा होना चाहिए. बट व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ रियल मैन? रियल मैन को कैसा होना चाहिए, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिटरमिन योर पर्सनालिटी, योर सेल्फ इमेज, and therefore your behavior towards the other sex or to people in general. Which stereotypes about men have been harmful? आपको कई चीजें फीड की गई बचपन से, ठीक है? कौन कौन से ऐसे फीड्स आपको नुकसान पहुंचा है जीवन में? Is there anything you would like to change in the way boys are being raised today in our society? If you feel yes, then you should raise your son that way. If you feel that things should change vis-a-vis a girl child, raise your daughter that way. That is important. बाकी दुनिया की हर theory अपनी जगह. So which change would you like to contribute? क्या आप बदलाव ला सकते हैं? And you know, लोग सोचते हैं कि prosecution, police, ठीक है, the justice, the judiciary, they are a part of the justice delivery system. Certainly they are. But I feel all of you are change agents. आपके पास उतनी ताकत है, आप दुनिया बदल सकते हैं. कोशिश करके देखिए, दुनिया बदलेगी. And you can become a real change agent. So these are things which we need to talk about, and we should, can we jointly create safe spaces? जिस organization में है, can there be safe spaces जहां एक woman आके कह सकती है कि look, I am being sexually harassed in the thana? Is there such a space where a man can say कि नहीं, all of us have become so brutal, we have become so aggressive? वो जो सिंघम्स है ना, सिंघम जो प्रमोट होते हैं, those सिंघम्स create so much of problem for police organization also. ये सारी चीजें सोचने की बात है. And the minute you start thinking, then you will act. And the minute you act, world will change. तो मेरा बस इतना ही आप लोगों से कहना था कि ये सारे स्टीरियोटाइप्स को खत्म करिए, and let us, जो भी हमको अपॉर्चुनिटी मिला है, whatever we can do to leave behind a better world, let us do it. एक तो दुनिया हमने inherit किया, but certainly each one of us has the power to, pass on, to gift a better world than what we found ourselves in. So I will end here. So thank you very much for Prakash, can you hear me? Yes, ma'am, I can hear you. तो इसको बंद किया जाए हम. Just a second. ठीक है ना? Now, ma'am, we will request all the participants if they have any queries or any Yes, of suggestions. course. तभी तो हम इसको So, बंद करना चाह रहे हैं ना. So इसको I will start request sharing. Irfan to please unmute all the participants. If they want to speak, they can speak. Unlock, please unlock. Yeah. आप बोलिए आप लोग, अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, अगर आपको लगता है कि if you want to question what I have said, or you or you have questions on your own इस topic पे, बताइए. Let this be a safe space to discuss such things. Participants can unmute themselves and they can speak. First of all, unmute yourself, then speak, please. बोलिए, आपस में तो इतना बोल रहे थे आप लोग when I was talking. Now you must speak. Yes, please. Who is it? Namaskar. This is DYSP A. Mohanty from Odisha. Okay. Yeah, please. Yeah, ma'am. Ma'am, the class is very interesting, no doubt. But thing is that this is my perception. Unless and until we change our mentality towards gender, then it is somehow been very difficult as to achieve the goal.
That's what I Yes. want to tell, ma'am. Yes, exactly. I 100% agree with you. That's what I said कि कानून कुछ भी बना लो, कितने भी classes कर लो, unless you introspect, जब तक आप अंदर अपने नहीं झांक के देखेंगे. It's so easy to judge others. Try to judge yourself by looking inside. कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं. Am I being gender sensitive? Am I unnecessarily or misjudging the person in front of me? ये सबसे खतरनाक होता है when you are in a position to take a decision. If you are recruiting, say, a female sub inspector, right? और आपके माइंड में अगर जेंडर स्टीरियोटाइप्स भरे, अरे महिलाएं तो ऐसी होती है, अरे नहीं काम कर सकती, अरे ऐसी हैं वैसी है, you will not recruit a female. You will avoid. So you see where जब तक आप अपने दिमाग में ये biases लेके चल रहे हैं तब तक फिर भी ठीक है. But the minute you are in a position to take a decision which impacts so many others, 100% is going to be a faulty decision. अगर जो bias पे आप चल रहे हो तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर का cleansing करना पड़ता है. ये जो बोल रही हैं, there has to be a mindset change. These are set minds. उसी को तो अनलर्न करना पड़ेगा कि अरे आज तक तो हमको ये बताया गया तो हमने ये सीखा, मेरा ये थॉट प्रोसेस है. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्नड. नई चीज सीखना इजियर है, पुरानी चीजों को हटाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. बड़ी हिम्मत लगती है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है. सो दैट्स देयर. यस, सर्टेनली आई एग्री विद यू. Yeah, ma'am. Anything Yeah, exactly. else? Thank you, ma'am. Yeah, Thank thanks. you very much, ma'am. कोई और विचार कोई रखना चाहेंगे? Anything else anybody wants to say? Hello, ma'am. This is Rishabh Devangan, AC. Yeah, please. Ma'am, I think that I consider myself as gender sensitive, but how can I change the thought of other, including women around us, that we have to change our thought? Like हम लोग जैसे पले बढ़े and now we have to think that कि हमारे में कोई difference नहीं है. सो ये कैसे हम लोग समाज को एक साथ कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि आप अपने से शुरू कीजिए या मैं आई थिंक कि मैं मानता हूँ, बट हाउ टू मतलब दूसरों को कैसे समझाया जा सके? देखिए, हम फिर कहेंगे अपने से शुरू करिए. आप जब ठीक बिहेव करेंगे अगला जरूर देखेगा. एंड देन यू कैन ऑलवेज आई सेड बिल्ड सपोर्ट ग्रुप्स. आपके माइंडसेट वाले भी और होंगे जो ये बदलाव लाना चाहते हैं. एक साथ होइए. एंड देन इट्स एन इश्यू ऑफ लीडरशिप ऑल्सो. बहुत सा, ये कोई लीनियर नहीं है कि एक लाइन से ऐसे चलेंगे तो ऐसा हो ही जाएगा. एट सेवरल लेवल्स दिस हैज टू हैपन. पर हम हमेशा ये कहते हैं कि आप, एंड यू आर राइट, अगले इंसान पे मेरा उतना हक नहीं होगा, उतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा जितना कि मेरे को खुद पे होगा. सो आई स्टार्ट विद माई सेल्फ. आई बिकम एन एग्जाम्पल. जब भी कुछ गलत हो आई स्पीक अप. हमको देख के जो कई लोग बदलेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी ना अगले से हिम्मत भी चाहिए होता है. ऐसा नहीं कि आपके जैसे सेंसिटिव और 4 लोग नहीं होंगे, लेकिन उनको लगता है कि इंडिविजुअली अगर हम ये इशू रेज करेंगे तो सब मेरा मखौल उड़ाएंगे. they'll make fun of me. So you also have to find like-minded people. अकेला तो आप एक दूर तक जाएंगे, लेकिन जब टीम बनेगी, सपोर्ट ग्रुप बनेगा, आप और दूर जाएंगे. And then the real change will come in. पर ये सोच के कि मैं अकेला हूं, कुछ नहीं कर पाऊंगा, तब तो फिर कहीं नहीं जाएंगे. आप जो भी कर सकते, इतना भी कर सकते हैं. कहते हैं ना, मूविंग द नीडल. If you can move the needle even this much, something better will happen. आप पढ़ के देखिएगा what is called the butterfly effect. It is exactly this what you are talking of. करिए, भरसक करिए जो आप कर सकते हैं. Don't think what the other person will think of me, या मेरा कोई साथ देगा कि नहीं देगा. हमें when I was ASP under training, I had a very brilliant
सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्हीं के अंडर में हमने ट्रेन किया। हम कुछ भी तारीफ करें उनके बारे में कम होगा। ही टोल्ड मी वन थिंग, अंग्रेजी में उन्होंने कहा था कि सुतापा देव, सी इफ यू वांट टू पिक अप कजल्स, अगर जो आप कोई झंडी लेके चलना चाहते हैं या कोई बदलाव लाना चाहते हैं, पीछे मुड़ के कभी मत देखना। So don't look behind, there will be nobody with you. वो हम आज तक नहीं भूले हैं। चार बदलाव लाने का आप छोटा छोटा कदम उठाइए, आएंगे लोग, साथ आएंगे, ऐसा नहीं है। ऑल पीपल आर नॉट बैड। अगर सोसाइटी में बैड लोगों का अगर डोमिनेंस होता तो समाज नहीं बचता, इट वुड हैव डिसइंटीग्रेटेड। दैट मीन्स देयर आर गुड पीपल। ढूंढिए ना उनको, मिलेंगे। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टॉक ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग। हम लोग ना फिर एक आइवरी टावर में बंद जाते हैं अपने अपने प्रोफेशन में। अरे दुनिया में स्टेप आउट करके भी देखना पड़ता है, बहुत लोग आपका साथ देना चाहेंगे, करिए ना। हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग गुड थिंग्स? नोबडी। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस मैम। ढूंढिए मैम अपने जैसा ढूंढिए, पर खुद शुरू करिए पहले। दैट्स माय ओनली थिंग। या यस मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैम, डोंट यू थिंक दैट द वुमन, जैसे कि लड़कियां भी ये सोचती है हमारे आसपास की, वो मतलब एक लड़की होने के कारण उनको कुछ बेनिफिट होना चाहिए, जस्ट लाइक और इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सपोज दैट मतलब उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि बीइंग अ वुमेन आई शुड हैव सर्टेन काइंड ऑफ फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल मैम, नॉट टू अटेंड पीटी परेड और extra activity apart from duty. So these things are there in any organization. So हम लोग तो ऐसा ट्रीट करते हैं मैम कि जैसे एक वुमेन के नाते हम लोग उनको क्या कर सकते हैं या नहीं दे। सपोर्ट आई एम पुटिंग एन एग्जांपल, जैसे कि एक वुमेन है, वर्किंग है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसका हस्बैंड वो आर्मी में है, तो उसे अपने बच्चों को भी साथ में रखना है। सो हम उसको सोचते हैं कि हम उसको एक फैमिली एकोमोडेशन दे दें आउट ऑफ द सीनियरिटी, राइट। देन वो इसको ये सोच सकती है कि अब जो है मुझे सर जो है वो पीटी से भी एक्सक्यूज करेंगे, या फिर मुझे और कोई दूसरी एक्टिविटी रोल कॉल से एक्सक्यूज करेंगे। सो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग। या आई गेट योर पॉइंट। सी देखिए, अनड्यू प्रिविलेजेस एक चीज होती है, ठीक है, प्रिविलेजेस एक चीज होती है, और एक हमने आपको बताया था इक्विटी, राइट। There will be certain certain extra things which I'm not talking of this woman officer who you are talking of. There will be certain things which will be needed to be given to an employee by an organization to bring him or her up to that level. This is called equity. Right? Now, हम आपको एक, although the audience is largely men, but I will give you a small example. The issue of period leave, ठीक है, जो menstrual leave होता है. Now there are many women who just don't need leave. नहीं होता है, कईयों को नहीं कोई problem होता है during her periods. But there are women जिसकी हालत खराब हो जाती है. Now there are many women who say कि क्या जरूरत है इस लीव का? Well, जरूरत है. This is equity, right? This is equity. ये fine distinction है. The organization understands कि there are certain categories of women जिसको चाहिए ये leave. उसी तरह से from the other end also ये नहीं होना चाहिए कि because I am a woman, I will take advantage. Now I'm not talking of requirement, I'm not talking of equity. Taking advantage. हमने आपको बोला फेमिनिन टॉक्सिसिटी भी होती है. सो व्हाट यू आर टॉकिंग ऑफ इज फेमिनिन टॉक्सिसिटी. हर एक को हम लोग को अपना लिमिट समझना पड़ेगा, राइट एंड रॉन्ग का डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा. वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू आवरसेल्व्स एज वेल एज टू द अदर्स. और जो आप बोल रहे हो वो एक्सेप्शंस में होंगे.
तो हर जगह ब्लैक शीप होते हैं, तो those black sheeps need to be talked to, they should be counseled. You get the point? This is it. ये फाइन डिस्टिंक्शन है, ये फाइन डिस्टिंक्शन को उसी तरह से समझना पड़ेगा. नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू से कि हमको रोल कॉल में मत भेजिए, नहीं बोलेंगी, बट दे विल ऑफ कोर्स बी, देयर आर मेन आल्सो, दे बंक ऑल द पीटी परेड्स, कुछ ना कुछ बहाना रोज बनाएंगे. तो यही है ना, हम लोग, each case has to be seen individually and they have to be counseled, just as you should counsel the man कि क्यों तुम ऐसा सोचते हो कि तुमको सुबह उठ के पीटी नहीं करना चाहिए, वैसे you can counsel the woman also. पर हमारा स्टीरियोटाइप है कि अच्छा चूंकि महिला है ऐसा बोल दी, एक बोल दी तो सब और सभी वैसे, ऐसा नहीं होता. इसको ऐसे आपको फाइन तरीके से फाइन ट्यूनिंग करके दिखना पड़ेगा. I'm done? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, Okay then. Yeah, there's somebody else. बोलिए. हाँ. This is Assistant Commandant Sunanta Vijay, ma'am. Yeah. Ma'am, from your lecture, we understood that our ultimate goal is gender equity through gender equality. Yes. Ma'am, how much do you believe that a legal intervention is necessary? Like, for example, we do not have any law that explicitly states that gender equality is must. For example, we can say Article 14 equality before law, that everybody should be treated equal. But there isn't no very explicit law on gender equality. For example, in UN human rights, they say that gender equality is a human right. Do you think that having an explicit law like that will pave the way towards gender equality and ultimately towards gender equity? See, law helps, as I said. Okay. More than the law or complementary to the law, the rules help. अगर sexual harassment वाला भी आप act देखेंगे, उसका rules भी है. But what helps most is because this is not just a legal issue. It is a social issue. It's a cultural issue. Right? There are, certain cultures, there are certain tribes even today where the eldest daughter becomes a prostitute, and this is a matter of big celebration in that community. What do you say of that? Laws तो हैं रोकने को, right? Rules हैं उन laws के. Those acts have rules. But because the community feels that way, because the culture that has, blossomed takes this as a big event, तो वो इसी से हटाने में दिक्कत हो रही है. So this has to be simultaneous. It can't be sequential कि okay कानून बन गया उसके बाद ये कर लें, ये कर. कानून है पर साथ में ये सब चीजें भी करनी पड़ेगी. But then if you think years back nobody spoke about these things. Now there are organizations, now there are people who are talking about these things. तो उनमें भी awareness हो रहा है. Those girls are questioning कि मैं क्यों ये काम करूं. They are running away from their communities. So change आता है, पर जहाँ पे एकदम से it has been there for years, ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि man ही provider हो सकता है, वो caregiver नहीं होता है family में. This has historical reasons. During the Stone Age, what happened? The man went for hunting, the woman was at home. तो वो बनता चला आया somehow. We need to challenge these narratives. यही तो हम बोल रहे हैं, जहां खड़े हो वहां जो चीज गलत दिख रही है उसको चैलेंज करो. Build support groups. Number 2, who can bring about these changes. So it's a simultaneous process. कोई एक अकेला चीज से नहीं होगा. Even if you make a है तो human rights का law नहीं है क्या है. But since we think we are superior to this person in front of me because of XYZ reasons, इसका caste ये, इसका race ये, इसका gender ये, that's why we behave that way, the way we do. That's why we discriminate. That's why we do violence. Otherwise, what reason can be there?
बरसों से तो ये बोला जा रहा है कि all human beings are equal. It's constitutional provision, not just in India, across the world it would. So human frailties जो हैं, as long as we get caught up in that, we'll behave as we do. We have to rise above our frailties. It's not an easy task. It's very easy to find fault with others. That's why when I spoke of all these aspects because they are not just theory. I have been through all these things. I have introspected within me. I have read up a lot. And then I have come to these conclusions. Mindset नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा. Right? And it starts from you. It starts from your family. बाकी दुनिया तो अपनी जगह है. So this is what is, I hope that answers your question because these are not easy answers, but yes, there are answers to it. Yeah, are we done? Yeah. Any other questions or suggestions from participants? Ma'am, this is ACP, Sciences Doctor of Commerce Battalion, Kolkata Police. Could you hear me, please? Sir, please I don't hear speak it. louder. Speak louder, please. I'm ACP, Sciences Doctor of Kolkata Police. Could you hear me, please? Okay. ACP from Kolkata Police, yes. The thing is that a lady is a very arrogant. A lady officer was a very arrogant. All initiatives are the measures we have taken from our end. All the measures we have taken, including the constellations and the other rituals, everything I've taken from our end. The thing is that he didn't pay any heed. In this regards, what should I do? This is my question. Prakash, could you repeat what exactly he wants to know? Because kuch muffled si awaaz hai. I understand there is a very aggressive lady officer and they have taken all measures. I don't know what measures have been taken. And she is not coming out of her aggression, right? Is that the thing? I have given all facilities and everything. Everything facilities was given and provided to her, but she didn't pay any heed. She didn't pay any heed. All facilities. Okay, now I understand. Yeah. So you're Mr. Ashok, right? I'm saying she's from ACT, Kolkata. Ashok. Okay, Kolkata. So see, what is happening here? There may be a man also who fits this definition completely. What you're giving about this lady officer, there would be also a male officer who fits this definition absolutely, this description absolutely. ठीक है? He would be very aggressive. आप हजार चीज कर रहे हैं, वो नहीं बदल रहा है, right? I presume today, since we are talking of gender, therefore you have brought up this issue about this woman. Now, I want to understand कि आपने उसको facility दिया. Maybe that facility is not the cause of her aggression. Maybe she has an abusive husband at home. Maybe there is some childhood trauma वो trigger हुआ है फिर. Maybe she has anger issues. तो ये आप नहीं sort out कर पाएंगे. This a trained professional or a trained psychologist or a trained psychiatrist can do. Then she should seek help. It could have happened with me also. It could have happened with you also. It can happen with any other officer or anybody. Aggression के पीछे cause होता है. चिड़चिड़ाहट के पीछे cause होता है. Whether it can be a physical issue. ठीक है ना, हो सकता है बीपी हाई हो सकता है हार्मोन्स पूरे यूं हो रहे हो, ठीक है. It can be anything. It can be some trauma which has been triggered once more. It can be domestic violence. It can be anything. So हम अगर सोचे कि ये तीन चीज हमने कर दिया और उसका बिल्कुल ही नहीं sort out हो रहा है and she's a gone case, I think we would, as leaders and we as organizations, we are failing her. We have to walk a bit more and try to understand क्या है. और अगर बिल्कुल ही okay, now you'll tell me कि साहब how many such people can the force accommodate?
Yes, you go, you walk a longer distance and try to, connect her to a good psychiatrist. If you are a leader of an exceptional ability, you connect her to a good psychologist, a counselor, or a psychiatrist. Maybe she will change. अब हमने तो उसको देखा नहीं. I just heard your definition, and this is what came to my mind prima facie. But remember, it could be a man also. It could be a male police constable also, male SI also. So I cannot really say, but that you will need to see. And then फिर बिल्कुल ही different category के हैं, then you take disciplinary action. But I think this much of margin must be given to every person. हर battalion, हर unit में इस type के लोग होते हैं. They are very troubled. They're very troubled. They are unable to understand their emotions. They are unable to control their emotions. But what is that trigger which is causing that person to behave like this? ये जब तक root cause analysis नहीं होगा, it is very difficult बीच से किसी को change करना. नहीं बदलता है आदमी. So we have to make that effort, right? So I really don't know how much effort or what effort has been made. And this is an individual case, right? Yes, anybody else, or we can wind up now? I also have to go somewhere. Right? Okay. I think, yeah. One last comment, please. Yes. Good morning, madam. May I speak? Yeah. We can hear you. Say, tell. Chandrakant. Yeah. Yeah. Okay. I'm admitted in hospital. I am for infection. So I am attending this course from hospital itself. Oh. So I couldn't hear the first part. I couldn't hear the first part. I heard that you're attending the course from the hospital. What's the first part? I am admitted in hospital due to some reason. Okay. And that is why I am attending the course from hospital itself. Oh, that's great. I have great faith on CAPT. I have done many workshops there in CAPT, at least in Bhopal. And as you are the host of today's webinar, that is why I am interested to attending the course, though I am admitted in the hospital. My question is to you, wherever in, can you hear me? Wherever your voice is coming, but not coming through completely. It's getting cut. Anyway, please continue. I think I'll be able to piece together your thing. Yeah. Tell me. Okay. Anyway, this course is for gender sensitization. Yes. मैं डिपार्टमेंट में 34 साल नौकरी की है महाराष्ट्र पुलिस में. 34 साल हो गए. मैंने ऐसी कोई लेडी नहीं कम्पीट नहीं करती. मेरे साथ में कम्पीट करने वाले बहुत लेडीज में कंधे को कंधा मिला के या हमसे ज्यादा आगे चल के काम करने वाले लेडीज पुलिस ऑफिसर है. लेकिन अभी क्या हो रहा है, बेसिकली एक पीटी परेड का किसी ने इशू निकाला. पीटी परेड के लिए कुछ लेडीज इश्यूज होते हैं, उसके लिए वो थोड़ा आगे पीछे करते हैं. ऐसे लोगों को ये पुलिस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा तकलीफ होती है. पंढरपुर एक जगह है, आपको पता होगा मैडम, महाराष्ट्र में एक पंढरपुर करके जगह है. पंढरपुर करके जगह है, वहां पे अभी एक पालसी गाड़ी चल रही थी, तो मैं बंदोबस्त के लिए था. लेकिन लेडीज ऑफिसर जो है అది ఒడగొడితే అయిపోతుంది. పెట్టుకోండి పంచాయతీ పెట్టినాడు కల్పరేట్ అని.
Prakash, can 100%. you find out exactly what you है ना? इसमें क्या chat box का provision है आपके WebEx पे? Yes, ma'am, we have the option of chat box. I will request Chandrakant sir. Yeah. Ask him to type it if he can. Somebody is talking. I Somebody is talking there. request other participants to please mute yourself because it will disturb the whole class. So I will request other participants to please mute yourself, and I will request Chandrakant sir because your voice is not clear. हाँ, कट के आ रहा है. Put your question or your suggestion in the chat box so that we can hear what you want to say. Chandrakant Question आप डालिए सीधे. You can आप अपना प्रश्न सर चैट बॉक्स में डाल दीजिए सर क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर. Some network issue. I will request other participants to please keep their mic mute. Thank you. So Chandrakant sir, if you can put your question in the chat box, sir, it will be better, sir, because we couldn't hear you properly. आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में डाल सकते हैं सर, हम उससे आपको रेस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर. ठीक है, I will do that. Yeah, sir. Thank you. Meanwhile, I would like to thank Sutapa ma'am. Thank you so much, ma'am, for sparing your valuable time, and all the points raised by you, they are very pertinent, they are very relevant, and they are very important. And I will request and I will urge all the officers who have joined this webinar from almost every part of the country to please introspect yourself, bring changes from yourselves, and bring changes from your family also, from upbringing. As very rightly said by ma'am, that we should teach our son, our daughters in our family, that what will be the right attitude or what will be the right perspective about this whole things, the gender sensitization, because we are seeing that every department has lady force. There are lady officers in every department, there are lady personnel, women personnel are there. So we have to work for a better environment in our society or in our organization so that they can perform in proper manner. Because right now we don't have such very nice facilities at every department, where we can accommodate all the lady personnel in a better manner. So I will urge and request every officer to introspect himself or herself so that they can. I will request the lady officers also, the lady personnel also, they should also introspect it, because some of the officers had said that some lady officers are very arrogant or they are raising excuses. So it is we have to work on all the aspects, not only male officers but the lady officers also. So it will be very fine if everything will work simultaneously. And now I would like to request Shri B.K. Sharma sir to deliver the vote of thanks on behalf of CAPT and all the participants. Respected B.K. Sharma sir, please. Okay, Prakash, am I audible and visible? Yes, sir, you are audible and visible, sir. Okay, right. Ladies and gentlemen, good morning to you. It is with immense pleasure and gratitude that I deliver a vote of thanks on behalf of this esteemed gathering and CAPT. We have just had the privilege of listening to an exceptional speaker, Ms. Sutapa Sanyal, who enlightened us on the critical subject of gender sensitization. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude to Ms. Sanyal for gracing us with her presence and delivering such an insightful and thought-provoking session. Her expertise and passion for the topics were evident throughout her presentation, captivating our attention and fostering a deep understanding of gender sensitization by bringing forth various real-life examples and case studies that serve as eye-opening illustrations of challenges faced by different genders in our society. Further, I would like to thank each and every one of you present over here. Your active participation, attentiveness, and willingness to learn are instrumental in making this event a successful one. Once again, I express my heartfelt gratitude to Ms. Sanyal for enlightening talks on gender sensitization. Your insights will undoubtedly resonate within us, guiding our actions toward the brighter and more equal future. Thank you all and have a wonderful day. Thank you.
Excuse me, Thank sir. you. There I is a just had. request. May we Oh. have the PPT, please, sir? Okay, that will come later on. Today I have something else to do. Right after this, I'll send it. I just had one small request. You know, there is a statement which says, nothing will move unless you do. It's a very small thing. Nothing will move unless you do, which means nothing will change unless you change. So start with yourself. Build support groups, and I'm sure you'll bring about change. So thank you very much. Thank you, CAPT, for having me. And thank you, everybody, for listening to me so patiently. All the best to you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Regards. And Thank you, thank ma'am. you all the participants. Thank you so much. So that's all from our side for today. Thank you so much, all the participants. Now leave the meeting. Yeah.